Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, hope you are enjoying and you will be doing well. And this lecture is particularly with reference to the PhD candidates. And today we will discuss about the autonomic nervous system. As you have seen that earlier we have discussed the central nervous system, and there are so many uh, disorders of the central nervous system we discussed, and today we are going to discuss the autonomic nervous system. Okay, so let's see. First of all, the organization of the autonomic nervous system. And if we talk about the organization of autonomic nervous system, so what we will discuss about these lectures, there are the organization of ANS and its subdivision along with the innervations, then the neurotransmitter in the autonomic nervous system, their synthesis, release, as well as their fate, sympathetic agonist, and they are catecholamines as well as non-catecholamines. Then sympathetic antagonist, which are actually the adrenergic receptor blocker as well as the neuron blockers. And parasympathetic, that means the cholinergic agonist or cholinesterase enzyme inhibitors, जो एंटी एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेस कहलाते हैं. ओके, और नेक्स्ट है हमारे पास पैरासिम्पथेटिक एंटागोनिस्ट. पैरासिम्पथेटिक एंटागोनिस्ट की अगर हम बात करें तो आपके पास मस्करानिक ब्लॉकर्स, गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट्स, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनको हम वी विल डिस्कस इंशाल्लाह. एंड लेट्स have the start with the very basic. And if you can recall that nervous system, the system which is the coordinating and controlling system of your body, that is divided into central nervous system as well as peripheral nervous system, PNS. Central nervous system is then further divided into brain as well as spinal cord. And peripheral nervous system, of course, one thing is the in the center, the other one will be in the periphery, na? And peripheral nervous system is again into divided into efferent as well as afferent. So peripheral nervous system can be divided into efferent as well as afferent. And efferent in simple terms can be known as motor type of the neurons, and afferent can be called in simple words as sensory type of the neurons. Okay, and if you classify the efferent, that means the motor, that is further classified into autonomic nervous system as well as somatic nervous system. Okay, and autonomic again classified into parasympathetic, sympathetic, as well as enteric type of the nervous system. So basically we will be discussing this autonomic nervous system here. Okay, and if you see that this motor type of the division, that is the efferent type of the neurons, they are divided into autonomic as well as somatic. Autonomic, as the name indicate, that autonomic nervous system is responsible to control your involuntary activities, whereas somatic type of the nervous system is responsible to control your voluntary activities, as I have mentioned here in this figure. Okay, so autonomic, that controls your involuntary type of the movements. For example, those activities which are not which are not under your will, and they are subconscious type. For example, heart is beating, there is the movement in the skeletal muscles, GIT movement. All these are the movements, or they are the activities which cannot be controlled by yourself, that are not under your will, that are involuntary type of the activities. But when we talk about the voluntary or somatic type of the activities, these are basically the conscious type of the activities, or those activities which are under your will, under your control. For example, the movement of the skeletal muscles, that will be classified as the somatic type of the activity. If I am moving my hand, or if I am moving my foot, or if I am moving anything else, so it means that this is the basically somatic type of the nervous system. But autonomic nervous system is responsible to control the involuntary type of the activities, isn't it? And efferent is divided ANS and
somatic. And then if we talk about the ANS, so there are parasympathetic, sympathetic, as well as the enteric type of the nervous system. Okay, that's good. Now the autonomic, which are involuntary, as I told you, and somatic are the voluntary. These two type of the nervous system, and there is the major difference that effectors in the somatic nervous system are the skeletal muscle. In ANS, the effector organ are your glands, smooth muscles, or cardiac muscle, because all these are the autonomic type of the movements or the activities. Then the second difference, that somatic nervous system involves only one efferent neuron, whereas in case of autonomic nervous system there are two different type of the neurons as well as the ganglia. You can see here that there is one is the preganglionic type of the neuron, then second is the postganglionic neuron, and there is a ganglia which is known as autonomic ganglia, and this autonomic ganglia further involves the second type of the neuron which is postganglionic, because this is after the ganglion. Okay, and if we talk about here in this case the somatic nervous system, so there is only one type of the neuron and directly it is reaching without any ganglia into the skeletal muscle. So conscious control required in somatic nervous system, as I told you, and non-conscious control governs the autonomic nervous system. So these are the major differences if you compare between the autonomic as well as the somatic nervous system. Okay, and this one is the same as we discussed earlier, that peripheral nervous system that control the skeletal muscles and that control smooth cardiac as well as the glands, that will be known as somatic, where there is only one neuron, and this is efferent limb. Again, this is the efferent limb in case of autonomic nervous system, but there are two neurons. Remember, one is the preganglionic and second one is the postganglionic type of the neuron. Okay, so these are the major differences that must be kept into the mind, and autonomic nervous system is further classified into sympathetic. जो major divisions हैं इनकी वो हैं sympathetic nervous system as well as parasympathetic nervous system. And can you recall that sympathetic nervous system is generally called as fight as well as flight response, and parasympathetic nervous system is generally called as well as rest and digest response. So sympathetic nervous system allow body to function under stress, because this is the fight or flight response. You can imagine that if an individual is under the stress, under the fight condition or under the flight condition, उस वक्त जो भी आपकी बॉडी की एक्टिविटीज़ इनवॉलंट्री सामने आ रही होंगी वो बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा. फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, डेफिनेटली व्हाट विल हैपन कि आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपके ब्रोंक्यूल्स डायलेट करेंगे, आपकी प्यूपिल जो है वो डायलेट करेगी, जिसे हम माइड्रियासिस कहते हैं. तो ये सारे केसेस आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आएंगे और ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को इंडिकेट करेगा. बट इफ़ वी टॉक अबाउट द पैरासिम्पैथेटिक टाइप ऑफ द नर्वस सिस्टम, व्हेन यू आर इन द रेस्टिंग और द डाइजेस्टिंग सिचुएशन, एट दैट टाइम the maintenance functions, they are basically managed, or you can say that are governed by the parasympathetic nervous system. एक्चुअली होता ही है स्टूडेंट्स के सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं. ठीक है ना, मोस्टली कुछ एक दो चीज़ों को आप छोड़ भी दें, मोस्टली ये एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं. और ये देखिए काउंटर बैलेंस करते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक को और सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक को, और यहाँ पर ये एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं. लेकिन होता यह है कि अगर देयर इज़ फाइट एंड फ्लाइट टाइप ऑफ द सिचुएशन, सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विल बी डोमिनेंट. पैरासिम्पैथेटिक भी वहाँ पर होगा लेकिन सिंपैथेटिक विल बी डोमिनेंट. इन केस ऑफ रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिचुएशन, द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम विल बी डोमिनेंट, जबकि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी वहाँ पर, ऑल्दो दैट विल बी द वर्किंग. सो आप इसको यूँ याद रख सकते हैं कि जब फाइट या फ्लाइट सिचुएशन होगी तो जो एक्शंस उस वक्त या जो उस वक्त एक्टिविटीज़ होती हैं आपके तमाम सिस्टम्स की, बिकॉज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज़ एम्ब्रेसिंग और कवरिंग ऑल ऑफ द सिस्टम्स ऑफ योर बॉडी, उस वक्त
जो एक्टिविटीज़ आती हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की होंगी, जबकि रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिचुएशन के दौरान जो भी एक्टिविटीज़ आएंगी वो बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की होंगी। ओके, आगे चलते हैं। और ये वही फंक्शंस हैं, तो इनको इस तरह से रटना या रटा लगाना इज़ नॉट अ जॉब. Actually, the thing is that if you get the point that parasympathetic nervous system is dominant during the fight or the flight situation, उस वक्त क्या होगा आप देख सकते हैं कि हार्ट रेट बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी, ब्लड वेसल्स में कंस्ट्रिक्शन आएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्रोंकोडाइलेशन होगी, जीआईटी की मोटिलिटी डिक्रीज होगी, सिक्रीशंस डिक्रीज होंगी, स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होंगे। तो ये सारे एक्शन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। आई के लेवल पर माइड्रियासिस होगी, पीपल डायलेट करेगी आपकी फाइट सिचुएशन में, लड़ने के दौरान, फ्लाइट के दौरान, खौफ के दौरान। और क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक आपका रेस्ट और डाइजेशन से रिलेटेड है तो उस वक्त हार्ट रेट भी कम होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कम होगी और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी, जीआईटी की मोटिलिटी बढ़ेगी जैसा कि डाइजेशन हो रही होती है या डाइजेस्टिव प्रोसेस के दौरान स्फिंक्टर रिलैक्स करते हैं, सिक्रीशंस जितनी भी जीआईटी की हैं या जो दूसरी सिक्रीशंस हैं वो इंक्रीज़ हो रही होती हैं। आई के लेवल के ऊपर जो है वो मियोसिस हो रहा होता है, यानी प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रिक्ट करती है। तो इस तरह से अगर आप इसको याद रखोगे तो यू विल नेवर फॉरगेट, और आप इनके एक्शंस को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, फाइट और फ्लाइट से सिंपैथेटिक को और रेस्ट एंड डाइजेस्ट से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. Okay, and same is the case here. There are the different systems, different organs, and there is sympathetic outflow, there is parasympathetic outflow. और ये आपको कैटजन में, गुडमैन गिलमैन में बहुत अच्छी बुक मिल जाएगी, ये पिक्चर मिलेगी बहुत अच्छी। आप देख सकते हैं कि ये सिंपैथेटिक भी, पैरासिम्पैथेटिक भी, आई में भी, लंग्स में भी, हार्ट में भी, एवरीवेयर। ये देखिए हार्ट को देख लें, यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ, ब्लू आई एम पिकिंग। आप देख सकते हैं कि लिवर को, स्टमक को और आपकी जीआईटी की जो मोटिलिटीज़ हैं, जो स्फिंक्टर्स हैं, पेल्विस एरियाज़ हैं, उन तमाम एरियाज़ में ये इनर्वेशंस आ रही होती हैं। ठीक है, तो ओरिजिन का यहाँ पर है कि क्रेनियोसैक्रल ओरिजिन जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रेनियो और थोरैकोलंबर जो होती है, एक डिवीज़न पैरासिम्पैथेटिक में एक डिवीज़न अफेक्ट कर रही होती है और एक में क्रेनियोसैक्रल डिवीज़न जो है वो इनकी इनर्वेशन में इन्वॉल्व होती है। पैरासिम्पैथेटिक में आप देखें कि ये क्रेनियल नर्व्स हैं और ये सारी की सारी इनर्वेट कर रही हैं इन तमाम एरिया से। तो क्रेनियोसैक्रल ओरिजिन जो है ना ये इन्वॉल्व होता है, जबकि अगर आप ये देखें थोरैकोलंबर रीजन जो है ये पैरासिम्पैथेटिक की इनर्वेशन में इन्वॉल्व होता है, यानी थोरैकोलंबर रीजन से सारे के सारे जो नर्व्स हैं वो ओरिजिनेट होती हैं और वो जाकर उन ऑर्गन्स को स्टिमुलेट कर रही होती हैं, ठीक है, या इनर्वेट कर रही होती हैं दूसरे लफ्ज़ों में। दैट्स गुड। ओके, एक डिफरेंस और ये भी है यहाँ पर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि अगर आप कंपेयर करेंगे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, तो आप ये चीज़ वाज़े यहाँ पर देख सकेंगे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है वो शॉर्ट होता है। ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन बेसिकली वहाँ शॉर्ट होता है, ये देखिए, और पोस्ट गैंग्लियोनिक लॉन्ग होता है। जबकि अगर आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को देखें तो जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है दे आर लॉन्ग, एंड द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो कि बाद में इफेक्टर ऑर्गन्स को इनर्वेट कर रहा है वो वहाँ पर शॉर्ट होगा। Okay, so this is also a difference between sympathetic as well as parasympathetic nervous system. So this is the same. I took this picture from Lippincott that in case of fight and flight situation, sympathetic nervous system active होता है and their actions are basically diffused, क्योंकि पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इनर्वेट करता है मोर देन वन ऑर्गन को यहाँ पर,
But if you talk about the parasympathetic nervous system which is active during rest and digest, तो यहाँ पर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो हैं वो ब्रांच्ड नहीं होते और किसी स्पेसिफिक ऑर्गन पर जाते हैं, तो इनके एक्शन स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, और इनके एक्शंस जो हैं वो डिफ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। ये एक और आपने बात इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में जहन में रखनी है, और ये बहुत ब्रिलियंट पिक्चर है। अगर आप यहाँ से जहन में रख सकें इस पिक्चर को, सो यू कैन कीप इन योर माइंड द होल पिक्चर ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, how the preganglionic, postganglionic and the neurotransmitter or the neurons are acting in this case. So look here that preganglionic neuron, then the ganglionic neurotransmitter, कहाँ पर क्या क्या है। आप देखें कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में अगर हम बात करें और पैरासिम्पैथेटिक में, तो एट गैंग्लिया, now keep in mind that there are two neurons, preganglionic, postganglionic. One is pre, second one is post, and between the two there is synapse or the ganglia. एक न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ होगा गैंग्लिया पे और एक न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ इफेक्टर ऑर्गन्स पे होगा। Now look, in case of the sympathetic or parasympathetic nervous system, in both cases गैंग्लिया पर जो न्यूरोट्रांसमीटर है ऑलवेज दैट इज एसिटाइलकोलिन, रिमेंबर, एंड रिसेप्टर्स आर निकोटिनिक। ये देखें यहाँ रिसेप्टर निकोटिनिक है और न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर एसिटाइलकोलिन है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज ऑल्सो द एसिटाइलकोलिन, और रिसेप्टर यहाँ पर है मस्केरानिक, नॉट द निकोटिनिक। लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर है वो डिफरेंट है, वो नॉरएपिनेफ्रिन है, और यहाँ पर जो रिसेप्टर्स हैं वो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हैं। अगर हम बात करें एड्रीनल मेड्यूला की, तो उसको भी सिंपैथेटिक इनर्वेशन होती है, वहाँ भी एसिटाइलकोलिन है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं एड्रीनल मेड्यूला ग्लैंड के ऊपर, और फिर वो एपिनेफ्रीन रिलीज़ करते हैं जो कि ब्लड के ज़रिए जाती है और एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पर ही काम करती है, ठीक है। जबकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, एज आई टोल्ड यू, देयर इज़ नो गैंग्लिया, ओनली द वन न्यूरॉन डायरेक्टली स्टिमुलेटिंग द स्केलेटल मसल्स, और न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ अगेन एसिटाइलकोलिन है और रिसेप्टर्स यहाँ पर निकोटिनिक हैं स्केलेटल प्लेट के ऊपर, स्केलेटल मसल्स के ऊपर, ओके। सो अब आपने इस फिगर को बहुत अच्छे से जहन में रखना है कि इन केस ऑफ sympathetic nervous system preganglionic, and in case of parasympathetic preganglionic neurotransmitter is acetylcholine, receptors are nicotinic. Postganglionic parasympathetic में acetylcholine ही है, receptor muscarinic है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर एपिनेफ्रीन है और रिसेप्टर यहाँ एड्रीनर्जिक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में कोई गैंग्लिया नहीं होता, एक ही न्यूरॉन इनर्वेट करता है स्केलेटल मसल्स को, जिनके ऊपर रिसेप्टर निकोटिनिक होते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ एसिटाइलकोलिन ही है। और एड्रीनल मेड्यूला को भी सिंपैथेटिक इनर्वेशन आती हैं, तो एड्रीनल मेड्यूला के ऊपर एक्शन एसिटाइलकोलिन का है और रिसेप्टर निकोटिनिक है, जबकि वो फिर एपिनेफ्रीन इन रिस्पॉन्स रिलीज़ करता है। आपको पता है कि एड्रीनल मेड्यूला इज़ रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज द कैटेकोलामाइंस एपिनेफ्रीन, और वो एपिनेफ्रीन कैन बाइंड विद दिस टाइप ऑफ द एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स जो कि आपकी बॉडी में कहीं पर भी मौजूद है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड कीप इन माइंड। नेक्स्ट यू कैन सी दैट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम is classified into two types, cholinergic as well as adrenergic. On the basis of post ganglionic neurotransmitter, you can call it as cholinergic and adrenergic, because parasympathetic nervous system में post ganglionic neurotransmitter is acetylcholine, so you can call the parasympathetic nervous system as cholinergic. And in case of sympathetic nervous system, because post गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर इज नॉरएपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन, एड्रीनलिन जिसका पुराना नाम है, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये एड्रीनर्जिक है। तो सिंपैथेटिक को वही वाली बात इस फिगर में दिखाई गई है कि कोलिनर्जिक और एड्रीनर्जिक भी आप इनको कॉल कर सकते हैं।
ठीक है। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर यानी जहाँ एसिटाइल कोलिन एक्ट करता है, आपने देखा एक तो वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं और एक मस्करानिक रिसेप्टर है। निकोटिनिक रिसेप्टर आगे डिवाइडेड है न्यूरोनल में और नॉन न्यूरोनल में। नॉन न्यूरोनल तो वो हैं जो स्केलेटल मसल्स में हैं, सोमैटिक में, और न्यूरोनल इम्यून सेल्स, सीएनएस और गैंग्लिया पर हैं। जबकि मस्करानिक रिसेप्टर्स M1 से लेकर M5 तक हैं। M135 यानी ऑड को हम अलग क्लासीफाई करते हैं, M24 को अलग करते हैं। इट इज़ एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और एड्रीनर्जिक रिसेप्टर की अगर आप क्लासिफिकेशन देखें तो देयर आर अल्फा एंड बीटा। अल्फा इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू अल्फा 1 एंड अल्फा 2। अगेन अल्फा 1 की सब टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं, अल्फा 1A, अल्फा 1B, अल्फा 1D, और अल्फा 2 की अल्फा 2A, अल्फा 2B एंड अल्फा 2C। और बीटा रिसेप्टर्स 3 में डिवाइडेड हैं, बीटा 1, बीटा 2 एज वेल एज बीटा 3। You people have to remember all these type of the receptors and also the mechanism of action. Let's see what is the mechanism of action of these receptors. कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जो कि दो में डिवाइडेड हैं, यानी निकोटिनिक में और मस्करानिक में। निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो कि गैंग्लिया के ऊपर होते हैं, रिमेंबर कि वो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स के थ्रू काम करते हैं। ऑलवेज देयर इज entry of sodium as well as calcium ion, so they are ionotropic receptors. okay. और मस्करानिक रिसेप्टर्स जी प्रोटीन टाइप ऑफ रिसेप्टर होते हैं, दे एक्टिवेट द जी प्रोटीन, और इस तरह से वो अपने इफ़ेक्ट्स को एनहांस करते हैं या अपने इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या रिसेप्टर फैमिलीज या मेजर मैकेनिज्म, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर आपको मालूम है कि M1, M3 और M5, क्योंकि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये ऑड हैं, और M2 और M4 इवन हैं। ये हैं सब ही जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, लेकिन ये GI हैं यानी इनहिबिटरी हैं, और ये GQ मोस्टली स्टिमुलेटरी होते हैं। अगेन यू नो दैट देयर इज़ अल्फ़ा, बीटा एंड गामा यूनिट ऑफ द जी प्रोटीन्स, और उसमें अल्फ़ा और फिर बीटा गामा डिसोसिएट होते हैं और अपनी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, या रिसेप्टर्स को जो सेकेंड मैसेंजर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप ऑफ द सेकेंड मैसेंजर्स आर इन्वॉल्व, जस्ट लाइक IP3 inositol triphosphate, diacyl glycerol, and there could be the cyclic AMP, one of the very important second messenger, and these G protein coupled receptors are always in the serpentine fashion, स्नेक लाइक फैशन में ट्रांस मेम्ब्रेन अक्रॉस द मेम्ब्रेन अटैच्ड होते हैं, और इस तरह से ये अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। सो वी हैव डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द निकोटिनिक रिसेप्टर एंड नाउ द मस्करानिक रिसेप्टर्स, and now the adrenergic type of the receptors. Adrenergic receptors are also uh, very important, and they work through G protein coupled receptor, remember. And G protein coupled receptor, again you know that G protein is of three type, that is GS, GI and GQ. okay, and you can see that these are the, I'm picking a pen, these are the alpha 1 receptor, these are alpha 2, and these are beta receptors. So they are also G protein receptor, this is the cell membrane, and they are transmembrane across the transmembrane. आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अल्फ़ा 1 GQ के ज़रिए काम करते हैं, एज ए रिज़ल्ट फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, जो कि एक्ट करेगा इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट पर और ब्रेक डाउन कर देगा इसको फॉस्फो इनोसिटोल बिसफॉस्फेट PIP2 में और डैग में। और ये कैल्शियम जो रिलीज होगा एज ए रिजल्ट, ये स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, और अल्फा 1 रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इनटू द स्मूथ मसल्स। सिमिलरली अगर आप अल्फा 2 रिसेप्टर्स को देखें, सो दे आर इनहिबिटरी एंड दे एक्ट थ्रू एडिनाइलेट साइक्लेज. You can recall that adenylate cyclase, it act on the ATP and it breaks into the cyclic AMP, which is the second messenger. Again there is the release of calcium, and this calcium can inhibit the transmitter release, and moreover the smooth muscle relaxation will occur because of the cyclic AMP. ओके, क्योंकि यहाँ पर साइक्लिक AMP जो है वो उसको रिलैक्स करवाएगा। जबकि बीटा रिसेप्टर्स वर्क थ्रू अगेन एडिनाइलेट साइक्लेज, बट दे ऑल्सो convert ATP into the cyclic AMP, and this cyclic AMP is responsible for heart muscle contraction, smooth muscle relaxation, as well as glycogenolysis.
So these are the mechanism of the adrenergic receptors. And the very important thing is that you must remember the location of these receptor and the mechanism of action of these receptor. So to efficiently understand the autonomic nervous system. Okay, so this is very important, and remember all these mechanisms, locations, neurotransmitters, and their organization. Okay, if you feel any of the difficulty, you may ask, and you are always welcome. Till then, please go through it and take care, and Allah Hafiz.